आपस का रेशियो था 3:2। सो ए और बी में 4/5 जब घटेगा तो एज न्यू शेयर विल बी, पहले था 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, कुछ कट होता नहीं है चलेगा, 12/25। बी's new share will be 2/5 multiplied by 4/5, that is 8/25. So new ratio of A, B and C will be 12:8:2. अब 1 नहीं लिख सकते, 1/5 will be 5/25. So new ratio will be automatically 12:8:5. ऐसा हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कहाँ जरूरत पड़ता है जरा याद करके बताओ, आपको न्यू रेशियो का कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ा? Where did you use new ratio? There are 2 or 3 specific places where we need new profit sharing ratio. उसके बिना काम ही नहीं होता। Yes, raised and written off. उसमें भी you have to be very specific. Yes, new profit sharing ratio is important. कभी कैलकुलेट करने का ये भी समझ लो। When goodwill account is raised and written off for the entire firm, पूरे फर्म का जब गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ होता है तो राइट ऑफ करते वक्त बोलते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, इज एनीबॉडी एल्स फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ वॉइस ब्रेकिंग? अनुज तिवारी is facing a problem. Anuj, it might be at your end, beta. Fine, thank you for the confirmation. So new profit sharing ratio is important when goodwill account is raised and written off for the entire firm, and also for calculating. दूसरा कहाँ जरूरत पड़ने वाला है? For calculating proportionate capitals. For calculating proportionate capitals during readjustment of capital. तो अगर आपको क्वेश्चन में रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स दिख रहा है या गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ दिख रहा है, एट दैट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल। इसके अलावा इसी से रिलेटेड भले ही अपन ने एकदम लास्ट में सीखा हो, देयर इज वन रेशियो व्हिच इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज रिलेटेड टू न्यू रेशियो। So what is sacrifice ratio to begin with? Sacrifice ratio is the ratio of sacrifice made by old partners for admission of a new partner. नए पार्टनर को एडमिट करते वक्त जूनियर पार्टनर्स को जो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दैट इज रेशियो इज कॉल्ड एज sacrifice ratio. This ratio is calculated. This ratio is calculated. Why do you calculate this? For a simple reason, for distributing goodwill amongst old partners. करते हो ये रेशियो कैलकुलेट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग गुडविल अमॉन्ग्स्ट ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, क्या हर क्वेश्चन में हम लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का जरूरत है क्या? डू वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो इन ऑल द क्वेश्चंस? नो, देयर इज अ स्पेसिफिक सिचुएशन यू हैव टू रिमेंबर। टेक्निकली देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो इन ऑल द क्वेश्चंस because sacrifice ratio is equal to old ratio. Sacrifice ratio is equal to which ratio? Old ratio. When the internal proportion of partners does not change in the new ratio. अगर मैंने जो एग्जांपल लिया वही बात करें तो ओल्ड रेशियो 3:2 था, न्यू रेशियो 12:8:5 है। बोलो प्रपोर्शन आपस में सेम है कि चेंज हो गया? इन दिस एग्जांपल हैज द proportion remained same or has it changed?
Yes, very good, Prajakta. It has remained the same, 12 is to 8. Numbers have changed, but 12 is to 8 still means 3 is to 2 only. 12 is to 8 still means 3 is to 2 only. So proportion has not changed. So यहाँ पर sacrifice ratio will be 3 is to 2. In simple words, which is important for you from examination point of view. When new ratio is given in the question, आप जब कैलकुलेट करते हो तो टेंशन ही मत लो. जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया रहता है एंड द इंटरनल proportion of old partners changes in the new ratio, then sacrifice ratio is calculated. And how do you calculate sacrifice ratio? Sacrifice ratio is equal to, the formula is old ratio minus new ratio. How to calculate sacrifice ratio? Formula is old ratio minus new ratio. My dear friends, आपको ध्यान रखना है 12th स्टैंडर्ड में अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया है, पहला सिचुएशन हम लोगों को अगर न्यू रेशियो दिया है और उसमें द इंटरनल proportion of old partners changes in the new ratio, then sacrifice ratio is calculated. I hope I am able to clear the doubt. The formula for calculating sacrifice ratio is as तो रिवीजन के वक्त भले ही मैंने प्रैक्टिकल चैप्टर सिखाते हो या कोई भी टीचर सिखाते हो सैक्रिफाइस रेशियो एकदम लास्ट में सिखाया हो, लेकिन मेरे दोस्तों रिवीजन के वक्त रिलेशन उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ है, तो वहीं पर पढ़ना उसको ज्यादा इजी है और समझ में भी जल्दी आ जाता है. बोलो, एनी डाउट्स रिलेटिंग टू सैक्रिफाइस रेशियो? Okay, the second adjustment is readjustment of accumulated profits and losses. Okay, I'm sorry for the small disturbance. When we talk about readjustment of accumulated profits and losses, first understand accumulated profits. What are they? Accumulated profits मतलब क्या? ये आप लोगों को मीनिंग समझना जरूरी है. Accumulated profits means those profits which the partners have earned but not distributed. So accumulated profits are also called as reserves. And examples of those reserves are general reserve, reserve fund. So anywhere you find a reserve or a fund, of course there are exceptions. कभी आप gratuity fund देखोगे तो वो exactly वो चीज नहीं है कि जो हम लोगों को बांटने का है, बट स्टिल उसके पीछे भी पर्पस अलग होता है. सो जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, और 12वीं में आपको ज्यादातर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. ये दिखता है ऑलवेज. दिस ऑल विल बी गिवन. कहाँ पर देखने मिलेगा आपको? यू विल बी गिवन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. कहाँ दिया जाएगा दोस्तों? हमेशा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में रहेगा. और दूसरा आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस. सो एक्यूमुलेटेड लॉसेस बेसिकली रेफर्स टू all your losses which you have earned या जो जमा करके रखा हुआ है, which you have accumulated during the year. इसका एक ही एग्जांपल आता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस. बाई चांस एक आधा साल में लॉस हुआ और पार्टनर्स ने उसको बांट के नहीं लिया तो उसको वैसे ही रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस. ऑल द accumulated profits and losses belongs
to which partners? Old partners. It always belongs to old partners, and hence they must be distributed amongst old partners in their profit sharing ratio. और लिखते वक्त कहाँ लिखने का? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर लॉस प्रॉफिट्स है, बाकी चल रहा है प्रॉफिट्स का, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? राइट इट इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड. परफेक्ट, वेरी नाइस. यस मानसी, यू आर राइट. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड. कुछ भी बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं. लाइबिलिटीज आर क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड, एसेट्स लॉसेस आर डेबिट बैलेंस एसेट्स. तुम लोगों को दिया रहता है, इसीलिए उसको क्या डेबिट साइड में लिखना. तो इतना बातें आप लोगों को समझ में आया क्या? So that was about readjustment of accumulated profits and accumulated losses. The third one that will come, again, very important part of the admission of partner is revaluation of assets and liabilities. Now, what is revaluation of assets and liabilities? This is very, very important and only related to admission of a partner, or rather retirement death. When we talk about admission, एक नया आदमी अपने फर्म में आ रहा है, तो नेचुरली अब तक जितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने खरीद के रखे हैं, आज उसका क्या वैल्यू है, ये हम लोगों को रिकॉर्ड करना है. जैसे एक आधा जमीन जायदाद हमने बहुत पुराना लेके रखा है, मे बी वी हैव परचेज्ड फॉर सम 10 lakh rupees, so our balance sheet shows it as 10 lakhs only, but the current market value may be crore or may be more than that also. So 10 lakhs का अगर 1 crore वैल्यू अप्रिशिएट हो गया है, तो ये 90 lakhs का जो प्रॉफिट हुआ है, इट बिलोंग्स टू मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ओनली. सो मिस्टर सी आने से पहले जितने भी जुने एसेट्स, जितने भी जुने लाइबिलिटीज है, उसको हम लोगों को रीवैल्यू करना होगा. और उसका जो भी प्रॉफिट, हमेशा फायदा होगा जरूरी नहीं है. देयर मे बी सर्टेन एसेट्स लाइक सम ओल्ड मशीनरी, ओल्ड फर्नीचर व्हिच नीड्स टू बी स्क्रैप्ड, उसको फेंक देना पड़ेगा, तो वो भी हमारे बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो भी राइट ऑफ कर दे. सो फॉर रिकॉर्डिंग the assets and liabilities, revaluation of assets and liabilities in the old firm, a separate account is opened called as revaluation account. या ज्यादातर क्वेश्चंस में हम लोगों को इसका नाम देखने मिला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. 99% you write it as profit and loss adjustment account only. My dear friends, what you have to remember is the simple rule of nominal account. Will be applied. That is, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. तो जितने भी प्रॉफिट्स लॉसेस होते हैं वो सब क्रेडिट होते हैं, और जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट होते हैं. सो व्हाट आर आवर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? इफ वी से लॉसेस कब होता है? व्हेन देयर इज डिक्रीज in the value of asset or increase in the value of liability, or there is an unrecorded liability which we have to record. ये तीनों जगह पे लॉस होते हैं. और प्रॉफिट्स कहाँ होते हैं? जब हमारा एसेट का वैल्यू, लैंड का वैल्यू 10 लाख से 1 करोड़ हो गया, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट. बस प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करो. द बैलेंसिंग फिगर
of revaluation account indicates profit or loss on revaluation. Which profit or loss belongs to whom? It belongs to old partners, and hence it must be distributed amongst old partners in their old profit sharing ratio. Am I clear? Very simple revaluation of assets and liabilities, and this remains same not only for the chapter admission of partner but also for the chapter retirement death. The rules remain the same. So out of 5 we have completed 3, but the most important, as you all know, is about adjustment of goodwill. What is goodwill and why is it important is because very simple, आज तक फर्म में जितना फायदा नुकसान हुआ है, whatever has been done, it has been done by old partners. Now suddenly a new person is going to come in and he is going to take his share of profits and losses henceforth. Now to bring to the firm to this place, to this level, the old partners must have done lot of sacrifice, they must have done lots of compensations, they must have done lots and lots of hard work, and now the firm is in a situation to give good profits, but they are finding short of capital. तो उनको कैपिटल कम पड़ रहा है, इसीलिए वो एक नया पार्टनर को साथ में ले रहे हैं. ऐसे में नया पार्टनर को कैपिटल का तो पैसा लाना पड़ेगा, साथ में उसको बोलेंगे यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म. गुडविल इज नथिंग बट गुड नेम, द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म. और ये मेहनत किसने किया हुआ है? दैट हैज बीन डन बाय ओल्ड पार्टनर्स. तो गुडविल का हमेशा याद रखना. एक बात याद रख लो, मैं एक वर्ड देता हूँ, जिन लोगों को याद नहीं रहता है, द वर्ड इज गोल्ड. व्हाट इज द वर्ड? गोल्ड. गोल्ड के साथ क्या याद आता है आपको हमेशा? एक सिंपल सा इंग्लिश का मुहावरा याद रखने का, ओल्ड इज गोल्ड. सो गोल्ड का पहला 2 वर्ड्स है गो, विच रेफर्स टू गुडविल. गुडविल विल बी ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड या बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स. तो गो ओल्ड दोनों मिलके आ गया गोल्ड. Always belongs to the old partners. Now what goodwill? Goodwill brought by the new partner. Goodwill brought by the new partner belongs to the old partners. So there are 2 possibilities which we know, that while coming, जब goodwill नया पार्टनर आ रहा है, so goodwill can be brought in cash. It can be brought in cash, or goodwill cannot be brought in cash. It can be raised in the books of accounts. If it is brought in cash, it can be either retained or it can be withdrawn by the old partners. If it is not raised, sorry, if it is not brought in cash, then goodwill account is either raised or goodwill account is raised and written off. Now when goodwill account is raised and written off, then there are further 2 possibilities. It is raised and written off either for the entire firm it is either raised and written off for the entire firm.
or we can say that it is raised and written off only for the new partner's share. These are the various options that you have to understand and that you have to keep in mind. आप लोगों को इसमें से कोई तो भी एक ही केस एग्जाम्स में आता है और वो अपने को प्रॉपरली करना है. When goodwill account, sorry, when cash is retained, तो आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा तो भी हमारा बेसिक एजम्पशन है that if new partner brings cash for goodwill, then this is to be passed. This is our basic assumption. पैसे टाइम पर याद करो, दो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं. एक पैसा लाया तो हम लोग बोलते हैं यस कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. पैसा किसके लिए लाया है हम लोग बोलते हैं दैट इज ब्रॉट फॉर गुडविल अकाउंट. So cash और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. और मैंने पहले ही सिखाया गुडविल बिलोंग्स टू हूम. गुडविल ऑलवेज बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स. ये एंट्री कुछ नहीं, गोल्ड वाला ही एंट्री है. टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर से एक बार बताओ, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आया गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर डैश रेशियो, तो क्या जवाब दोगे? Mansi has already written it. Goodwill will be always distributed in their which ratio? Sacrifice ratio. You should not write old ratio. Sometimes sacrifice ratio is equal to old ratio, or rather majority of the times ऐसा ही होता है. इसीलिए जो है हम लोग old ratio थ्रू शॉर्टकट में निकल जाए. Second, we will say when cash is withdrawn. अगर हम लोग को दिया है कैश इज विड्रॉन तो उसमें हम लोगों को 3 जर्नल एंट्री पास करने पड़ते हैं. वी हैव टू पास 3 जर्नल एंट्रीज. पहला पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. दूसरा बोलोगे वापस गुडविल पर अधिकार हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है. नो डाउट अबाउट दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन. Now because they have decided to withdraw, the third entry will be old partners capital account debited to cash account. इसमें एक ही बात याद रखने का, sometimes if they say half of the goodwill is withdrawn, the third entry, that is C, will be passed for half the amount. अगर उन्होंने बोला half the amount is retained तो क्या करोगे? अगर उन्होंने बोला half the amount is retained तो क्या करोगे? हाफ द अमाउंट विड्रॉन बोला तो विड्रॉन का एंट्री लिखोगे. हाफ रिटेन्ड बोला तो भी विड्रॉन का एंट्री करना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हाफ ग्लास फुल इज हाफ ग्लास एम्प्टी. तो हाफ विड्रॉन मतलब हाफ रिटेन ही होता है. तो हाफ रिटेन बोला तो भी हाफ विड्रॉन का ही केस फॉलो करना है. प्लीज रिमेंबर दैट वेरी केयरफुली. थर्ड केस अगर हमको बोला है गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, बोलते हैं गुडविल अकाउंट इज रेज्ड. तो गुडविल अकाउंट रेज करते वक्त वी हैव टू पास only one journal entry here, and that journal entry will be goodwill account debited to old partners capital account. Here only one journal entry will be passed. Hence, there will be a balance in goodwill account which must be
balance sheet, asset side. Very good, Mansi. Correct. And fourth case, now that is going to be again a tougher one. That is goodwill account is raised and written off. So when they say that goodwill account is raised and written off, you have to check what, whether it is for the entire firm or whether it is for only the new partner share in it. So यहाँ पर दो केसेस और भी आते हैं. पहला केस आता है goodwill account is raised and written off for the entire firm. Goodwill याद रख लेना, आप entire firm का कैलकुलेट कर सकते हो या only for the new partner share in it. So ऐसे टाइम पर if it is raised and written off only for the it is for the entire firm, then the first entry will be रहेगा, रेस करने का तो एंट्री सेम रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. याद रखना, गुडविल ऑलवेज बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स ओनली. और दूसरा आपको याद रखना है, राइट ऑफ अपन ने या रेस पूरे फर्म के लिए किया है, तो राइट ऑफ करते वक्त ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या राइट ऑफ कर रहे हो, गुडविल अकाउंट. These will be the two journal entries which are passed when goodwill is raised and written off. और यहाँ पर जब all partners capital account debit होगा, तो it will be debited in the new profit sharing ratio. कोई दूसरा पॉसिबिलिटी है, क्या है, गुडविल अकाउंट is raised and written off for new partner share. 12th स्टैंडर्ड में देखा गया है कि ये उतना ज्यादा बार नहीं आया है as compared to raised and written off for the entire firm, but फिर भी इम्पोर्टेंट है, we need to learn it, we need to understand that also. यहाँ पर भी पहला रेज होते वक्त वो तो जनरल एंट्री सेम रहेगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और राइट ऑफ होते वक्त बिकॉज इट इज ओनली न्यू पार्टनर शेयर, इट विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. सो गुडविल के ये चारों केसेस आपको एकदम क्लियरली ध्यान में रखने हैं, विदाउट एनी कंफ्यूजन. रिटेन, विथड्रॉन, रेज्ड एंड रिटन ऑफ. And then the last and the most important fifth adjustment of the chapter is capital contribution of the new partner. Whenever a new partner is admitted, एक बात तो पक्का है कि वो पैसा तो लेके आएगा. So पैसा लेके आया, so the journal entry for capital contribution of new partner will be, क्या जनरल एंट्री बोलेंगे हम लोग से, यस, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो भी रहेगा, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Okay, here a small change. Let me ask you this thing. Is it possible that new partner brings assets as capital contribution? Yeah, we should raise for the entire firm. We should raise for the entire firm. पहला option. तो अगर समझो एखादा पार्टनर ने, नया पार्टनर आते वक्त फर्नीचर लाया, एक फर्नीचर लेके आया,
तो क्या जर्नल एंट्री पास होगा मेरे दोस्तों? फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इफ ही इज ब्रिंगिंग कैश एंड आल्सो ही इज ब्रिंगिंग फर्नीचर, तो क्या जर्नल एंट्री पास होगा? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। पैसा भी लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, यस वेरी गुड अर्चना, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, इसीलिए ये रिवीजन लेक्चर है, कुछ अलग अलग बातें मैं सिखा रहा हूँ। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा ये भी समझ लो। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय फर्नीचर न्यू पार्टनर के कॉलम में आ जाएगा। कैश के डेबिट में मान के चलो उसने 1,00,000 रुपया कैश लाया और 40,000 का फर्नीचर लाया या 50,000 का फर्नीचर लाया, ऐसा करके टोटल 1.5 लाख का उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय कैश 1 लाख, बाय फर्नीचर 50,000 तो आएगा ही। साथ में ये भी समझ लो, कैश के डेबिट में लिखोगे टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख, कैश में तो 1 लाख आएगा। अब ये फर्नीचर जो लाया है उसका इफेक्ट क्या होगा, कोई मेरे को बता सकता है क्या? जो फर्नीचर लाया है उसका इफेक्ट क्या होगा, मेरे को बता सकता है क्या? एनीबडी? फिर से बता रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश बाय फर्नीचर होगा 1 लाख और 50,000, कैश के डेबिट में टू कैपिटल 1 लाख आएगा। अब फर्नीचर डेबिट मतलब एग्जैक्टली क्या करोगे आप? यस वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस किधर आ गए बेटा? एडमिशन में हम लोग ऐड टू फर्नीचर, करेक्ट। तो जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर रहेगा उसमें ये अमाउंट ऐड करना है, और अगर फर्नीचर पहले से नहीं होगा तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू राइट इट ऑन बैलेंस शीट एसेट साइड डायरेक्टली। क्लियर? अंडरस्टूड? पॉसिबिलिटी कुछ भी है, ऐसा कभी आ सकता है क्या सर? आई डोंट नो, है नॉलेज रखने का। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों ने सीखा समथिंग कॉल्ड एज रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स क्या होता है? व्हाट इज रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स? इफ यू अंडरस्टैंड दैट केयरफुली, व्हेन all the partners decide to maintain the capitals as per profit sharing ratio, it is called as readjustment of capitals. Called as what? Readjustment of capitals. In such a case, the proportionate capitals are calculated in a separate working note. Proportionate capitals calculate किए जाते हैं। Thereafter, while closing partners capital account, the differences can be adjusted in 3 ways. First one is through current account, second one through loan account, and third one through cash and bank account. When the question is silent, they only say about readjustment, so we always have to assume that the difference is transferred to current account. तो हम लोग to current account by current account लिखेंगे
and we will be directly transferring it to balance sheet liability side or asset side. Sometimes they say that the readjustment is to be done and it is to be transferred to loan account. So जो भी difference आएगा it will be transferred to loan account, transferred second effect balance sheet liability side. And if it is through cash and bank account, तो टू कैश बाय कैश लिख के सेकेंड इफेक्ट जो है हम लोग उसको कैश एंड बैंक अकाउंट में देते हैं. So this is what your entire chapter admission of partner spoke about. But if we touch upon, ये theory part हो गया, the practical solution of the chapter admission of partner included preparing the following. क्या क्या करते थे हम लोग, क्या क्या बनाते थे आंसर में? तो सबसे पहला हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. दूसरा हम लोग बनाते हैं वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. वी प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म and then we prepare cash and bank account, we prepare goodwill account, and of course working note में आता है calculation of new profit sharing ratio. सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहता है ना. ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा तो हमारा काम क्या है आगे का? तो हमारा काम एकदम सिंपल है कि हम लोगों को क्या करना है कि उधर से सारे लाइबिलिटी, सबसे पहला कैपिटल दिखेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जनरल रिजर्व फंड दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, अदर लाइबिलिटीज ऑन द लाइबिलिटीज साइड. अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा. उसके बाद एसेट्स डायरेक्टली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एसेट साइड. कम ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट. एडजस्टमेंट में दो ही एडजस्टमेंट होगा, एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन और दूसरा तुम लोगों का जो रहेगा दैट विल बी गुडविल. उसको प्रॉपरली मैनेज करने का रीएडजस्टमेंट दिया तो रीएडजस्टमेंट, काम खत्म. डिफिकल्टी लेवल इसमें उन्होंने जो लाया है दैट इज ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज. So they talk about 4 transactions which you may remember as we did in the last part. The first of those was sale of an asset. Transactions related to assets, very simple, nothing very difficult, but डिसोल्यूशन में इसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गया है अपने को और इजी लगने लगेगा. स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने पढ़ाई किया था तो शायद डिफिकल्ट लगा हो, बट अभी आप ऑब्जर्व करो कि आप लोगों को एकदम इजी लगेगा क्योंकि आपको डिसोल्यूशन आता है. इसके लिए सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, फर्स्ट इफेक्ट and second effect. If we talk about the transactions, क्या क्या हो सकते हैं? First one is sale of asset. हमें जैसे ही बोला सेल ऑफ एसेट तो आपका दिमाग काम करना चालू कर दिया. डिसोल्यूशन में आपने किया है कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन. यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट चाहिए अपने को. तो क्या होने वाला है, अगर एसेट्स बेचा तो नेचुरली उतना एसेट कम होगा तो लेस फ्रॉम एसेट्स. हमेशा दिस विल बी द बुक वैल्यू. यू हैव टू रिमेंबर बुक वैल्यू यानी जो भाव का एसेट बेचा हो. और सेकंड, हम लोगों को पैसा आया इसीलिए सेकंड इफेक्ट आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट साइड. हियर यू विल रिकॉर्ड सेल वैल्यू. दोनों में जो प्रॉफिट लॉस डिफरेंस अगर रहेगा दैट इज प्रॉफिट और लॉस एंड दैट प्रॉफिट और लॉस must be transferred to our revaluation account or what we call as our profit and loss adjustment account. Am I clear with this? Second transaction related to this is assets taken over by a partner. So if an asset is taken over by a partner, एक बात पक्का है वापिस, asset गया तो less from assets.
एसेट्स में से, क्योंकि बैलेंस शीट है तो यू विल ऑलवेज हैव बुक वैल्यू ओनली, तो हमेशा डिडक्ट करते वक्त बुक वैल्यू ही डिडक्ट करना है आपको। और सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि पार्टनर लेके जा रहा है, उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, हियर इट विल बी टेकन ओवर वैल्यू, again difference will be transferred to revaluation account. Third one is repayment of liabilities. Whenever liability is repaid, तो पहला इफेक्ट आने वाला है less from liability, again here also book value, और repayment हुआ so cash and bank account credit side। सेल हो या repayment हो, याद रखने का यहाँ पर you will record actual amount paid, difference जो भी रहेगा it will be transferred to revaluation account। And last one is liability taken over by a partner। पहला इफेक्ट is less from liability, that is book value, and second effect पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड टेकन ओवर वैल्यू। ये सब में याद रखने का द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड ऑब्लिक और सेल वैल्यू और टेकन ओवर वैल्यू will be transferred to revaluation account. This is all about your chapter admission of a partner. Anybody wants to ask any doubts? Can please go ahead and ask.